تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ ابو سفیان نعمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کلاسز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کلاس 10 اردو کی، اور آج کا جو چیپٹر ہے یہ چیپٹر 1 ہے، یعنی سبق نمبر 1 ہے، اور اس کے تمام سوالات اور جوابات آج ہم بنانے والے ہیں۔ جیسا کہ یہ چیپٹر پہلے اپلوڈ ہو چکا ہے لیکن اس کا سوال جواب نہیں بتایا تھا، تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آبجیکٹیو کے ساتھ سبجیکٹیو بھی لے کے چلیں گے اور پورا کا پورا کوشچن اینڈ آنسر پورا کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آبجیکٹیو میں چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی 2025 میں جو ایگزام دیں گے اس میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو سکے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آبجیکٹیو میں لیتے ہیں۔ یہاں پر جو سبق نمبر 1 ہے اس کے مصنف کا نام بتا دیتا ہوں کیونکہ ان کے مصنف کے بارے میں زیادہ سوالات آتے ہیں، یہ خاص طور سے بورڈ ایگزام میں۔ تو ان کے مصنف کا نام یہاں پر دیکھ لیجیے لکھا ہوا ہے، حمد خدا عز و جل کے جو لکھنے والے ہیں ان کے جو مصنف کا نام ہے جناب شبنم کمالی صاحب ہیں۔ یہ ایک بہت ہی معزز آدمی ہیں، یہ اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سچے عاشق بھی ہیں، اور یہ زیادہ تر جو ہیں اپنے اسلام کے اوپر انہوں نے بہت محنت کیا ہے، اسلام کے اوپر تبلیغ بہت زیادہ کیا ہے، اور انہوں نے اسی فیلڈ میں رہ کر کیا کہ اپنے آپ کو مشہور کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہاں پر جو ہم سب سے پہلا سوال لیں گے یہاں پر کہ حمد کے کیا معنی ہیں۔ یہاں پر آبجیکٹیو میں آپ کے اسکرین پر آ رہا ہوگا کہ حمد کے کیا معنی ہیں۔ آپشن میں ہیں اللہ کی تعریف، اولیاء کی تعریف، نبی کی تعریف اور ان میں سے کوئی نہیں۔ تو حمد کے جو معنی ہے اس کا جواب ہے اللہ کی تعریف۔ دوسرا میں ہے کسی بھی کلام کی شروعات کس کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہاں پر مطلب کوئی بھی جو نعت وغیرہ ہوتا ہے اس کی شروعات کس کے ساتھ کی جاتی ہے، تو اس کا آنسر جو ہوگا وہ ہوگا سی، حمد کے ساتھ۔ آگے دیکھیے خدا کے نام کے ساتھ کسی کام کا شروع کرنا کیسے سمجھا جاتا ہے، پسندیدہ، متبرک یا مشہور یا ان میں سے کوئی نہیں، تو متبرک سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر اس کا آنسر جو ہوگا وہ بی ہوگا۔ آگے دیکھیے کسی صنف میں اردو کے تمام شاعروں نے طبع آزمائی کی ہے، غزل میں، مریثہ میں، نظم میں یا حمد میں، تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا ڈی یعنی حمد میں۔ آگے دیکھیے خالق کائنات کون ہے، خدا ہے، انسان ہے، فرشتے ہیں یا ان میں سے کوئی نہیں ہے، تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا اے یعنی خدا۔ وہ کون ہے جس کا کوئی شریک نہیں، تو اس لیے تو سب کو پتا ہے کہ کون ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہے اللہ۔ اس کا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا سی۔ حمد کے اشعار میں کس کے صفات کو بیان کیا جاتا ہے، میت کی صفات کو، نبی کے، عورت کے یا خدا کے، تو اس کا آنسر ہوگا ڈی یعنی خدا کے۔ آگے دیکھیے کس کی صفات کی کوئی حد نہیں، نمبر 1 نبی کے، رسول کے، خدا کے، فرشتے کے، تو اس کا آنسر ہوگا سی یعنی خدا کے۔ آگے دیکھیے حمد میں خدا کے کس چیز کا بیان کیا جاتا ہے، آگے دیکھیے اسما کا، صفات کا، عبادت کا یا ان میں سے کوئی نہیں، تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا صفات کا۔ آگے دیکھیے نعت میں کس کی شان میں اشعار پیش کیے جاتے ہیں، نعت میں کس کے شان میں اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ کیا لکھا ہوا، نبی کے، خدا کے، اولیاء کرام کے، ان میں سے سبھی، تو یہاں پر ہم کیا بولیں گے، نعت میں نبی کے، یعنی آنسر کیا ہوگا، اے ہوگا آنسر۔ آگے دیکھیے منقبت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے، جواب میں دیکھیے خدا کی، نبی کی، اولیاء کی یا ان میں سے کوئی نہیں، تو آنسر ہمارا سی ہوگا یعنی کیا ہوگا، اولیاء کی۔ آگے دیکھیے کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ کس میں بیان کیے جاتے ہیں، نظم میں، نعت میں، مریثہ میں یا قصیدہ میں، تو اس کا آنسر ہوگا ڈی یعنی قصیدہ میں۔ آگے دیکھیں حمد خدا عز و جل کے مصنف کون ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا، شبنم کمالی، اس کا آنسر ہوگا یعنی بی۔ آگے دیکھیے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے، تو شبنم کمالی کا اصل نام یہاں پر مصطفیٰ رضا ہے، یعنی آنسر ہوگا سی۔ آگے دیکھیے شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے ہے، شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے ہے، اتر پردیش، بہار، بنگال، جھارکھنڈ، تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا بہار۔ شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی، یہاں پر 1938 ہے، 1940 ہے، 1966 ہے، 1942 ہے، تو اس کا آنسر جو ہوگا وہ ہوگا اے یعنی 1938۔ شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی، نمبر اے میں ہے سیتا مڑھی، دربھنگا، مدھوبنی یا چمچی چمپارن، تو یہاں پر جو ہوگا یہ جواب ہوگا اے یعنی سیتا مڑھی۔ آگے دیکھیے انوار عقیدت کس کی شاعری کا مجموعہ ہے، تو یہاں پر لکھا ہوا شبنم نعمانی، نذیر احمد، شبنم کمالی، ان میں سے کوئی نہیں، تو یہ جو آنسر ہوگا اس کا سی ہوگا یعنی شبنم کمالی۔ آگے دیکھیے ضیاء عقیدت کس کی شاعری کا مجموعہ ہے، ضیاء عقیدت بھی شبنم کمالی کا شاعری مجموعہ ہے، آنسر ہوگا سی۔ آگے دیکھیے آنسر ہوگا بی، شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کہاں صرف کیا ہے، تو یہاں پر نعت گوئی میں، حمد گوئی میں، وعظ و تبلیغ میں، ان میں سے کوئی نہیں، تو اس کا آنسر سی ہوگا وعظ و تبلیغ میں۔ شبنم کمالی اللہ اور اس کے رسول کے کیسے عاشق تھے،
यहाँ पर ये ऑप्शन में दिया गया है दिखावे के, सादिक, लोगों के सामने, इनमें से सभी। तो यहाँ पर जवाब होगा बी यानी सादिक। झेल में से किसका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है? शबनम कमाली का, नज़ीर अहमद का, इम्तियाज़ हुसैन का या हाली का? तो इसका आंसर होगा ए यानी शबनम कमाली। खालिक का माना क्या है? रिक्स देने वाला, जिंदा रहने वाला, पकड़ वाला, पैदा करने वाला। तो आंसर होगा डी यानी पैदा करने वाला। आगे देखिए, झेल में से कौन शबनम कमाली की नातिया शायरी का मजमुआ है? औलियाए अकीदत, शादाब अकीदत, पैगाम अकीदत या रियाज़ अकीदत? तो आंसर होगा डी यानी रियाज़ अकीदत। आगे देखिए, किसमें खुदा की तारीफ की जाती जाए उसे क्या कहते हैं? जिसमें खुदा की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं, गज़ल कहते हैं, नात कहते हैं, नज़म कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको हम्द कहते हैं। सना के माना क्या है? खामोशी है या अकेला है या मुसाफिर है या तारीफ है? तो आंसर होगा डी यानी तारीफ। अल्लाह कहाँ का मालिक है? आंसर जवाब में देखिए, आखिरत का है, दुनिया का है, दो जहां का है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आंसर होगा सी यानी दोनों जहान का। आगे देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात कैसी है? शरीक है, हमसर है, यकता है या इनमें से सभी हैं? तो आंसर होगा सी यानी यकता है। आगे देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैज़ से किसको रिज़्क मिलता है? परिंदे को, फरिश्ते को, इंसानों को, दो जहान को? तो आंसर होगा डी यानी दो जहान को। आगे देखिए, सबकी हयात मौत का ख्याल किसको रहता है? खुदा को, फरिश्ते को, नबियों को या इनमें से सभी को? तो आंसर होगा क्या? खुदा को। आगे देखिए, कौनों मकान में खुदा का जलवागर क्या है? सिफात है, ज़ात है, जमाल है या कुदरत है? तो आंसर होगा सी यानी जमाल है। आगे देखिए, खुदा के हुक्म से आज भी क्या कायम है? नज़्म ज़िंदगी, इंसान, मुसलमान या इनमें से कोई नहीं? तो हमारी नज़्म ज़िंदगी। आगे देखिए, साहिब अक्ल फहम को किसकी ज़ात पर नाज है? खुदा की ज़ात पर नाज है या पढ़ने लिखने वाले को या औलिया को या उस्ताद को? तो खुदा की ज़ात पर सबको नाज है। इस हम्द में शायर किसे मकसद में कामयाबी की दुआ कर रहे हैं? यानी इस शायरी में, इस हम्द में शायर जो है वो कैसे मकसद में कामयाबी की दुआ कर रहा है? तो अमीर बनने का, मशहूर होने का या नेक होने का या इनमें से सभी? शायर किस यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा सी यानी नेक। आगे देखिए, शायर किसके हुजूर खास में सवाल कर रहे हैं? नबियों के, औलिया के, इंसानों के या खुदा के? तो आंसर होगा डी यानी खुदा के। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव था ये मुकम्मल हुआ। अब यहाँ पर हम सब्जेक्टिव में आते हैं यानी 2 नंबरी सवाल में। तो आइए सबसे पहले हम 2 नंबरी सवाल को देख लेते हैं। तो बोर्ड एग्जाम जो होता है वो आपसे जितना सवाल करेगा आपको उतना ही का जवाब देना है। अगर आप एक्स्ट्रा बोलते हैं तो आपका नंबर काट लिया जाता है। तो यहाँ पर जो सवाल देंगे, यहाँ पर सवाल पहले पूछ रहा है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए? कब पैदा हुए? तो अब बस आपको उसकी तारीख पैदाइश बतानी है। अगर बोलता कब और कहाँ पैदा हुए तो उनके घर के बारे में भी आपको बताना होता। तो यहाँ पर पूछा गया है शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो जवाब में है शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए, यह आंसर हुआ। आगे देखिए 2 नंबर सवाल में शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो शबनम कमाली जिला सीतामढ़ी के पुखरेरा गांव में पैदा हुए, यह आंसर हुआ। आगे देखिए 3 नंबर सवाल में शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो शबनम कमाली का इंतकाल 2006 ईस्वी में हुआ। आगे देखिए 4था नंबर सवाल है हम्द व नात में क्या फर्क है? तो हम्द व नात में क्या फर्क होता है? हम्द में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ होती है और नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है, यह हो गया। आगे देखिए 5वां सवाल है शबनम कमाली के किसी एक नातिया कलाम के मजमूए का नाम बताइए। तो आपको पांचों किताब में से किसी एक का नाम बता देना है, ठीक है। तो शबनम कमाली के किसी एक शायरी मजमूए का नाम क्या है? फिरदौस अकीदत है। आगे देखिए सवाल नंबर 6 में हम्द किसे कहते हैं? तो हम्द उसको कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ हो, उसे हम्द कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 7 है मनक़बत किसे कहते हैं? तो मनक़बत उससे कहते हैं जिसमें किसी औलिया किराम की, किसी अल्लाह के नेक बंदे की तारीफ होता है, उसे मनक़बत कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कसीदा किसे कहते हैं? तो कसीदा उस नज्म को कहते हैं जिसमें किसी हाकिम या बादशाह की तारीफ की जाए पैसे या इनाम के लालच में, उसको क्या बोलते हैं? ये उसको कसीदा बोलते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 9 में कायनात की तख्लीक किसने की है? तो कायनात की तख्लीक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की है। जवाब में ये सवाल नंबर 10 है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत हल करते हैं। सवाल नंबर 11 है शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो जवाब इसका है शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। तो यहाँ पर जो सवाल नंबर 2 था यानी 2 नंबरी सवाल था जिसको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं, वो भी मुकम्मल हुआ, कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर वाले सवाल मुकम्मल हुए हैं। अब सवाल नंबर 5 में आते हैं यानी 5 नंबरी सवाल जिसको हम बोलते हैं, उसमें आते हैं तवील सवालात जिसको बोला जाता है उर्दू में। तवील सवालात का मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। यहाँ पर पूछ रहा हम्द किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखे।
تو यहाँ पर आपको कम से कम 4 से 5 लाइन लिखना होगा 5 नंबरी सवाल में। तो यहाँ पर पूछ रहा हमद किसे कहते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखिएगा कि हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ होती हो। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ में किसी और को शरीक कर लिया, किसी और की तारीफ़ को बयान कर दिया, तो वह हमद नहीं रह जाएगा। बकिया आप अपनी मर्जी से लिख दीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 2 में है हमद मनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 2-2 लाइन लिखना है। हमद जैसा कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की तारीफ़ की जाती हो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ के अलावा किसी और की तारीफ़ करेंगे तो वह हमद नहीं रहेगा। दूसरे में क्या कह रहा है, मनक़बत, मनक़बत उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी औलियाए किराम की तारीफ़ हो, किसी अल्लाह के नेक बंदे की तारीफ़ हो, उसको मनक़बत कहते हैं। कसीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी बादशाह की तारीफ़ हो, किसी अमीर आदमी की तारीफ़ हो की जाए जिस पैसे और इनाम वगैरह के लालच में, उसको मनक़बत की है, उसको कसीदा कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पर 3 नंबर सवाल कह रहा है शबनम कमाली के चंद शायरी मजमूए के नाम बताइए। यानी वो 5 किताब जो है उनमें से आपको किसी 3 या 4-5 किताब के नाम बता देना। यहाँ पर कह रहा है चंद, तो आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी, 5 भी, आपको जो मर्जी लिख सकते हैं। तो उनकी किताबों का नाम यहाँ पर है अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाई अक़ीदत, सहबाई अक़ीदत और फिरदौस अक़ीदत। ये 5 किताब के नाम है, आप बताइए। आगे देखिए सवाल नंबर 4 में है हमद और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। हमद और नात में फ़र्क क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है हमद और नात में क्या फ़र्क है। अगर हम हमद लिख रहे हैं उसको नात बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन बिल्कुल अलग है। हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की तारीफ़ की जाती हो, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की तारीफ़ की जाती हो। अगर हमद के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर दें तो वो हमद नहीं रहेगा, ना वो नात रहेगा, समझे। तो ये कुछ भी नहीं हो जाएगा। इसलिए नात हमद में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की तारीफ़ करेंगे, और नात में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होगी। बकिया अगर और किसी की करेंगे तो वो नात भी नहीं रहेगा। तो यही बुनियादी फ़र्क है। वैसे आपको स्क्रीन पर दे दिया होगा, आप वहां से देख लीजिए। तो ये वीडियो जो है वो ये मुकम्मल हुआ सब है चैप्टर नंबर 1 का। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि 2025 में जो बच्चे एग्ज़ाम दे वो अच्छे से अच्छा नंबर लाकर अपने कामयाबी का पूरा ढोल पीट दे अपने गाँव में। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।